السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیر اعلیٰ KCR نے دلتوں کو خود مختار بنانے کی اسکیم کے سلسلے میں منعقد کیا کل جماعتی اجلاس، اپوزیشن جماعتوں سے تجاویز کا حصول۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی، دونوں شہروں میں اتوار کی دوپہر سے ہلکی بارش۔ ممنوعہ زردہ پروڈکٹس کی ذخیرہ اندوزی اور منتقلی و فروخت میں ملوث 3 افراد زیر حراست، 6 لاکھ روپے سے زائد مالیاتی اشیاء ضبط۔ نارتھ زون ٹاسک فورس ٹیم اور بوئن پلی پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے دلتوں کی بھلائی کے لیے شروع کی جانے والی CM دلت امپاورمنٹ اسکیم کے رہنمانہ خطوط کو خطیت دینے کی غرض سے پرگتی بھون میں ایک کل جماعتی اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن پارٹیوں کے قائدین سے سلسلے میں تجاویز وصول کی، جبکہ تیقن بھی دیا گیا کہ وہ اس اسکیم کو دلتوں کو مستحکم کرنے کی غرض سے تشکیل دے رہے ہیں۔ کل جماعتی اجلاس میں ریاستی وزیر کے ایشور، کانگریس قائد بھٹی وکرمارکا، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے علاوہ CPI کے دلت نمائندوں، دلت اراکین پارلیمان، دلت اراکین اسمبلی اور کونسل کے علاوہ دلتوں کے عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ TRS رکن اسمبلی سمن نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور آباد اسمبلی ضمنی انتخابات میں TRS بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ BJP کو حضور آباد میں ووٹ مانگنے کا حق اس لیے نہیں ہے کیونکہ BJP کی مرکزی حکومت نے تلنگانہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں میں فنڈز جاری نہیں کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ ریاست کی ترقی کے لیے تیزی کے ساتھ اقدامات کر رہے ہیں اور ریاست میں چلائی جانے والی اسکیمات ملک بھر میں مثالی ہے۔ నువ్వు వేరే వాళ్ళకు లోపల లోపల మద్దతు తెలిపింది వాస్తవం కాదా సమాధానం చెప్పు। గతంలో రైతు బంధు పథకాన్ని, కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని, KCR కిట్ పథకాన్ని వద్దని నువ్వు విమర్శలు చేసిన మాట వాస్తవం కాదా సమాధానం చెప్పు। ఇదే కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ సభ్యుడు బండి సంజయ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి వాళ్ళంతా ముఖ్యమంత్రిగా ఈటెల రాజేందర్ కావాలంటే ఏనాడైనా నువ్వు ఖండించినవా? బీసీ సంఘాల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం హైదరాబాద్లో జరిగితే దాంట్లో నువ్వు వేదిక మీద ఉండగానే బీసీ నాయకులకైనా ఈటెల రాజేందర్ ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే నువ్వు ఖండించినవా? ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుండా కూర్చోలేవా? BJP پارٹی آفس میں دلتوں کے مسائل کو لے کر ایک اجلاس سابق رکن پارلیمنٹ وویک وینکٹ سوامی کی قیادت میں منعقد ہوا۔ بعد ازاں وویک وینکٹ سوامی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ BJP وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے منعقدہ کل جماعتی اجلاس سے اس لیے بائیکاٹ کر رہی ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے دلت قائد کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اسے
पूरा नहीं किया गया। 90% दलित खौलदार किसानों को रैतु बंधु स्कीम से महरूम किया गया। दलितों को 3 एकड़ अराजी आज तक फराहम नहीं की गई और ई राजेंद्र को BC कायद होने की वजह से उन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। 10 మందిని దళితులను కలెక్టర్లు ఎస్పీలు చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఇంకా ముఖ్యమంత్రి పదవి అయితే ఇవ్వలేదు దళితులకు. 2 ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఉండే రాజయ్య ఇంకా శ్రీహరి గారు. ఎందుకు వాళ్ళను బర్తరఫ్ చేసినావు? మళ్ళా పోస్ట్ ఎందుకు పెట్టలేదు? నువ్వు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రేమ ఉంటే దళితుల మీద ఫస్ట్ డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ దళితులకు ఇవ్వాలి. నువ్వు ఏదైతే మాట ఇచ్చినావో ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని చెప్పి ఆ పోస్ట్ ఏదైతే ఇంతకుముందు ఉండేనో వారు దళిత ఉప ముఖ్యమంత్రికి ఇచ్చి వారికి वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा हरिता हरम प्रोग्राम और TRS रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार का ग्रीन चैलेंज इंडिया कामयाबी के साथ रूबे अमल लाया जा रहा है। इस सिलसिले में इतवार के रोज़ जुबली हिल्स में TRS रुकने राज्यसभा संतोष कुमार, TRS रुकने असम्बली गोपीनाथ ने बड़े पैमाने पर पौधे लगाए। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमुल हैदराबाद में अगले 48 घंटों में हल्की से शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई मकामात पर बारिश की पेश क़यासी होने की बात कही गई है। हुकूमत ने बचाव कारी मिशनरी को मज़कूरा पेश क़यासी के तहत तैयार रहने की हिदायत दी है। इतवार को दोपहर से हैदराबाद में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और इंचार्ज मुंबई यूनिट अहमद बलाला ने मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए मौजूदा सियासी हालात और वहाँ जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने मज़कूरा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मुंबई यूनिट प्रेसिडेंट फैयाज़ खान, रुकन पार्लिमान औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील के अलावा दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने पहाड़ी शरीफ में वाक़ दारुल हुदा मदरसे के अहाते में मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल का आगाज़ किया। इस मौके पर कारगुजार जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा मदरसे के अहाते में इससे कबल ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर का भी आगाज़ किया गया था, जो कोविड मरीज़ों के लिए मख्तस किया गया था। जमात इस्लामी तेलंगाना यूनिट के कई ज़िम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। टोटल स्टाफ हायर किया गया था। अब मंसूबा ये है कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स कायम किए जाएँ। पीडियाट्रिक और गायनोकोलॉजी के 2 डिपार्टमेंट्स तो पहले से वहाँ भी थे, यहाँ भी वो रहेंगे, और जनरल मेडिसिन का भी एक यहाँ पर उसके अलावा डिपार्टमेंट होगा, और मुस्तक़बिल में इन डिपार्टमेंट्स को मज़ीद एक्सपेंड किया जाएगा। नए डिपार्टमेंट्स भी इंशाल्लाह यहाँ पर आएँ, तो वो भी एक बड़ा हॉस्पिटल होगा जहाँ पर मुख्तलिफ बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर कार्रवाई मुकम्मल हुई। परमिशंस की कार्रवाई, स्टाफ को अपॉइंट करने की हिस्सा हम उसमें ले सकते हो, वो हिस्सा उसमें हम अदा करें। ऑक्सीजन थेरेपी का आगाज़ जुम्मतुल विदा के दिन
उसका इफ्तिताह अमल में आया था और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने के सफ़र के बाद चूँकि कोविड के केसेस के अंदर बड़ी कमी आई है तो इस हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का आज यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और ये इलाक़ा गरीब मुसलमानों का इलाक़ा है। काफ़ी बहुत मज़दूर पेशा लोग, जुज़माश लोगों की बड़ी तादाद इस इलाक़े के अंदर रहती है। मैं समझता हूँ कि यह हॉस्पिटल उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी नेमत साबित होगा और जो सहूलतें इसके अंदर मुयस्सर हैं, फ़राहम की गई हैं, वो किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी की जानिब से जो जमात इस्लामी हिंद का एक इदारा है, ये हॉस्पिटल यहाँ पर क़ायम किया गया है। मैं तमाम डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स की टीम को, नर्सेस को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, इंसानी ज़रूरत भी है और मिलनी ज़रूरत भी है और हम सब लोगों को आज जो इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो रहा है, पहले से चल रहा है, अब उसको एक नई शक्ल दी जा रही है, उससे बेहद खुशी और मसरत है और मैं तमाम अहल खैर से अपील करता हूँ कि वो इसकी मदद करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस वक्त अफसोस की बात है कि इलाज जो असल में सर्विस है, खिदमत है, वो सबसे बड़ा बिज़नेस और सबसे बड़ी तिजारत बन गई। ऐसे हॉस्पिटल अगर हमारे समाज में काम हो जाए तो इंशाअल्लाह इस तसव्वुर को तोड़ने की ताकत हम लोगों में पैदा होगी और जो समाज के गरीब लोग हैं वो भी अपने इलाज के बारे में सोच सकेंगे। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़िम्मेदारों को, जमात इस्लामी तेलंगाना को और डॉक्टरों की उस टीम को जिसने इस काम को यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत अता फरमाए। आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ईदी बाज़ार में थैलेसीमिया मरीज़ों को अतिया देने की गर्ज से बड़े पैमाने पर खून के अतिये कैंप का अहतमाम किया गया। इस कैंप की निगरानी चेयरमैन आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट सैयद हमीदुद्दीन ने की, जबकि इस मौके पर ग्रुप के ज़िम्मेदारान समीउर रहमान, सैयद इरफान और ज़ियाउर रहमान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि थैलेसीमिया साइकिल सोसाइटी की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया जाता है ताकि मरीज़ों को मुफ्त खून का अतिया दिया जा सके। मोहम्मद अकबर शरीफ रूबी न्यूज़ क्राइम ब्यूरो के मुताबिक तकरीबन 350 यूनिट्स खून इस कैंप से जमा किया गया। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकाद अमल में लाया गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि तलैसेमिया एक ऐसी बीमारी है जो मासूम बच्चों को लाहिक होती है, जिसके लिए 15 दिन में उन मासूम बच्चों का ब्लड डोनेशन यानी ब्लड चेंज करना पड़ता है। इसके लिए 2700 बच्चे यहाँ पर पेशेंट की हैसियत से शरीक है। मौजूदा हालात में, पेंडेमिक में, वहाँ पर ब्लड डोनेट करने वाले लोग नहीं हैं। इस दर्द को महसूस करते हुए, इस ज़रूरत को महसूस करते हुए आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अली जनाब सैयद हमीदुद्दीन साहब और उनके डायरेक्टर हज़रात जनाब समीउर रहमान साहब और उनकी टीम ने बहुत बेहतरीन अंदाज़ के अंदर यहाँ पर लोगों को दावत दी है कि आप आएँ, अपना ब्लड डोनेट करें उन मासूम बच्चों के लिए जिनकी जान बचाना हर इंसान पर फ़र्ज़ है। जैसा कि हदीस में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने दुनिया की इंसानियत की जान बचाई। हम मुसलमान हैं, हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों की ज़रूरत पे काम आए। तो इस ज़रूरत को, इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट जनाब हमीदुद्दीन साहब और उनके पूरी टीम और उनके रुफ़क़ा और उनके चाहने वालों ने दिल खोल कर यहाँ पहुँच कर ब्लड डोनेशन करने की कोशिश और एक तरतीब आप देख रहे हैं जो हमारे सामने है। मैं आपके ज़रिए इन हज़रात का
बिलखुसूस जनाब हमीदुद्दीन साहब का और उनके भांजे जनाब समीउर रहमान साहब और उनके जितने भी रफ़क़ा है सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ईदी बाज़ार में जो रोटी घर है वहाँ पर तलीसीमिया के पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। इस कैंप में माशाल्लाह से हैदराबाद और हैदराबाद के अकनाफ के जितने भी विलेजेस हैं वहाँ से नौजवान यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपना खून का अतिया इन पेशेंटों को उन्होंने दिया। मैं आर चैरिटेबल ट्रस्ट सैयद हमीदुद्दीन साहब की जानिब से आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस अपील पर रोटी घर आकर आप लोगों ने उनका अतिया दिया। मैं फिर एक बार सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। बज़्म फ़रोग़ उर्दू की जानिब से हैदराबाद के मारूफ शायर यूसुफ रवीश के 4000 मुशायरों की तकमील पर तहनीती तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत सदर बज़्म डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम ने की। इस तक़रीब में मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर डॉक्टर राही, जहांगीर ख़यास, मीर लियाक़त अली हाशमी और मोहसिन ख़ान ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। इस मौके पर रोज़नामा सहाफ़ी दक्कन के अदबी सफ़े पर यूसुफ रवीश पर शाये किए गए ख़ुसूसी गोशे की कापी उनके हवाले की गई। बाद अज़ां डॉक्टर फ़ारूक शकील की सदारत में मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शोरा ने अपना कलाम सुनाया। सोहेल अज़ीम ने निज़ामत की, जबकि इस मौके पर शब्बीर ख़ान स्मार्ट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नाज़रों, टास्क फोर्स टीम ने बोयनपल्ली पुलिस के इश्तराक से RR नगर में वाक़ एक होटल पर धावा किया और गैर क़ानूनी तौर पर ज़र्दा प्रोडक्ट्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने और इसकी मुंतक़ली के अलावा फ़रोख्त में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया। DCP टास्क फोर्स टीम के मुताबिक 46 साला के मल्लिकार्जुन, 36 साला सुरेश राम और 22 साला सीताराम को हिरासत में लिया गया, जबकि 38 साला दिनेश कुमार मुफर्रुर बताया गया है। मज़कूरा मकाम से तकरीबन 6,13,410 रुपये मालियती अशिया बरामद की गई। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। SOT मलकाजगिरी टीम और गटकसर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए गांजे की फ़रोख्त एक रैकेट को बेनकाब किया। इस रैकेट में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए 4.5 किलो गांजा जब्त किया गया। गटकसर पुलिस ने सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया। हिरासत में लिए गए मुलज़िमीन में से A साई गौड़, A साई नंदू और G कल्याण शामिल हैं।
سینئر جرنلسٹ و مترجم مسعود عالم ولد حافظ سید محمود اتوار کو انتقال کر گئے۔ مسعود عالم حیدرآباد کے کثیر الاشاعت روزناموں میں بحیثیت سب ایڈیٹر کام کر چکے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے علاوہ ایک عرصے تک وہ الیکٹرانک میڈیا سے بھی بحیثیت مترجم جڑے رہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان کے فرزند محمد نوید سے موبائل نمبر 9394936486 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ KCR نے دلتوں کو خود مختار بنانے کی اسکیم کے سلسلے میں منعقد کیا کل جماعتی اجلاس، اپوزیشن جماعتوں سے تجاویز کا حصول۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی، دونوں شہروں میں اتوار کی دوپہر سے ہلکی بارش۔ ممنوعہ زردہ پروڈکٹس کی ذخیرہ اندوزی اور منتقلی و فروخت میں ملوث 3 افراد زیر حراست، 6 لاکھ روپے سے زائد مالیاتی اشیاء ضبط، نارزون ٹاسک فورس ٹیم اور بوئن پلی پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز نہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔